So what I told you, next point from our syllabus in our neutron diffraction is about measurement technique. Now you may ask me, ma'am, what type of measurement is the okay, ma'am, we are clear with scattering of neutrons by solids and the liquids. Then after we are clear with magnetic scattering. And now ma'am, can you please tell us simply how that neutron diffraction is having its type of instrumentation type? So देखिए ये जो कुछ भी आपके न्यूट्रॉन्स डायफ्रैक्शन है, तो ये न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के लिए मेजरमेंट के लिए जो कुछ भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो इन मेजरमेंट के लिए सिंपली हम जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स लेते हैं, तो वो न्यूट्रॉन्स का आप लोगों को जो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है वो है कि व्हाट टाइप ऑफ neutrons reactions you are taking for the neutron diffraction spectra, or for neutron diffraction what type of neutrons are induced reactions, what type of neutron induced reactions are carried out. तो आप लोगों का आंसर होगा that are of type low energy region. त्याचा region काय असतो? low energy region. Wait, what we are learning? Measurement technique. Whatever this measurement technique is there in that very first one question which they may ask you in your MCQ, that is what type of neutron induced reactions are carried out for the instrumentation of your neutron diffraction, और फॉर न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन जो कुछ भी उसका सोर्स होगा वो कितने एनर्जी का होगा, तो दैट इज 0. लो एनर्जी का होगा। पहली बात, वो लो एनर्जी के होंगे और लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होंगे, बट उनकी जो कुछ भी रेंज होगी दैट विल बी 0.025 टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.05 to 70 electron volt. Electron volt is also important because it's a unit. Now what type of diagrammatic representation or what type of arrangement you are doing actually, that we will see for the explanation of your neutron diffraction. For the explanation of neutron diffraction, we are using, for its a measurement technique, we are using D by Skerrer-Hull method. कौन सी method? D by Skerrer-Hull method. नीट आहे का? D by, wait, let me take another one slide. I'm clearing this slide. I'm taking in a horizontal way. D by Skerrer-Hull method. And in this method we are using powder samples. For the determination we are using the powder samples. Then after neutron beams we are passing onto the piles, onto the atomic piles, and then after whatever your crystal is there, that crystal you can simply you can orient it, you can put it in the your neutron arrangement. Wait, I'll show you firstly the diagram so that you can be clear. Beam of your n म्हणजे neutron, you are passing it. Then तुम्ही काय सिलेक्ट करताय? You are selecting its velocity. So I'm writing here. तुम्ही एकाच दिशेला लिहायचं, तर एक्झाम मध्ये जेव्हा theory pattern आहे, at that time you can note them at one side or you can note here also velocity selector. जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था कौन से एनर्जी के आपके न्यूट्रॉन्स आप यूज
करते हो तो लो एनर्जी न्यूट्रॉन reactions you are taking out, reactors you are taking out, and whatever their range is there, that is nothing but 0.0252 70 electron volt. Then after we are drawing simply d by square Hull method, and whatever this d by square Hull method is there, this method is containing beams of your neutrons which you are bombarding on velocity selector, and now you are having your crystal sample or you are having your crystal. Then this crystal can be रोटेटेड, और ये क्रिस्टल कैसे पुट करोगे आप, सिंपली उस पर ये जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो बम्बार्ड होने चाहिए। अब ये जो कुछ भी आपका क्रिस्टल है वो क्रिस्टल आप उसको हिला सकते हो, मतलब कि यू कैन रोटेट इट आउट, एंड सिंपली ये जो कुछ भी रोटेटिंग व्हील है, एंड वेट करो 1 मिनट। सो ये जो कुछ भी आपका रोटेटिंग व्हील है, इस पर से आप आपके सैंपल को रोटेट कर सकते हो, और देन आफ्टर योर सैंपल कैन गेट डायफ्रैक्ट, योर सैंपल कैन गेट डायफ्रैक्ट। अब ये जो कुछ भी डायफ्रैक्टेड बीम्स होंगे, ये डायफ्रैक्टेड बीम्स आप आपके न्यूट्रॉन के काउंटर को कनेक्ट करोगे। किसको कनेक्ट करोगे, ये लिखती हूँ मैं, आप समझ लो। न्यूट्रॉन के काउंटर को आप कनेक्ट करोगे ये, और न्यूट्रॉन के काउंटर को कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रा काउंट होगा डिजिटली, जैसे हमने एक सारडी में देखा था विजुअली, उसके डायग्राम्स वगैरह देख के। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो कुछ भी स्पेक्ट्रोमीटर आप यूज कर रहे हो, तो ये स्पेक्ट्रोमीटर इज अबाउट न्यूट्रॉन, is about neutron diffraction pattern, and whatever this spectra is there for neutron diffraction that you can count। but ये स्पेक्ट्रा के लिए ये जो कुछ भी अरेंजमेंट हमने किए, ये अरेंजमेंट में हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं वो बोलती हूँ। तो न्यूट्रॉन बीम्स, firstly what you are passing, neutron beams you are passing with this with the velocity selector onto the atomic piles। जैसे कि आप ये एटॉमिक पाइल से आप बम्बार्ड कर रहे हो, इसको आपके क्रिस्टल्स पर बम्बार्ड करते हो, जिससे कि आपके ये जो कुछ भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो कुछ भी सोर्स होता है, वो सोर्सेस की जो कुछ भी स्पेसिफिक हम लो एनर्जी के जो कुछ भी हमारे क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स जो कि हम मोनो, अब ये जो कुछ भी एनर्जी, ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड कर रहे हैं, ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स हम बम्बार्ड, अजरा क्यों लिखना है आपको स्क्रीन पे, ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रॉन्स आप लोगों को मोनो एनर्जेटिक बीम के आप पास करोगे। मोनो एनर्जेटिक टाइप के मतलब क्या, मोनो मीन सिंगल, एंड एनर्जेटिक मतलब एनर्जी, मतलब आप जो आपको मैंने अभी भी जो बोला था 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ये जो कुछ भी आपके एनर्जीज होते हैं, ये एनर्जीज वाले न्यूट्रॉन्स आप बम्बार्ड करोगे। किस पर, आपके सैंपल पर, आपके इस सैंपल पर जो कि पाउडर फॉर्म में है, उसको सैंपल पर डालने के बाद में आप BF3 का काउंटर यूज करते हो, जो कि आपके सैंपल की तरफ स्लोली आप लोग उसको आप, इट्स ओके। सो आप ये जो कुछ भी मोनो एनर्जेटिक बीम्स आप जो भी पास करते हो आपके सैंपल पे, तो वो आप आपके यहाँ पर आपका एक BF3 का काउंटर होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक BF3 का काउंटर होता है। BF3 बोल रही हूँ मैं, बी बोरॉन, F फ्लोरीन, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3। लेट मी राइट, BF3 का क्या होता है बेटा, काउंटर होता है। तो उस काउंटर पर जो कुछ भी आप सैंपल होता है, वो सैंपल आप स्लोली रोटेट करते हो। वो स्लोली रोटेट करने पर क्या होता है, आप लोगों को आपका बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से क्लियर होगा, और आपके जो कुछ भी ये आपका ये न्यूट्रॉन्स आते हैं, फिर ये डायफ्रैक्टेड बीम्स आपको मिलते हैं, फिर आप न्यूट्रॉन काउंटर पे आपको ये है आपका BF3 का न्यूट्रॉन का काउंटर। ओके, तो ये जो कुछ भी BF3 मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन का काउंटर है, तो ये न्यूट्रॉन का काउंटर आपका अच्छे से आप लोगों को आप यहाँ पर ये जो कुछ भी आपका सैंपल है, ये इसको रोटेट कर करके अच्छे से आपको जो कुछ भी एंगल्स पीक्स जो कुछ भी आते हैं, एंगल्स के पीक्स किस पर से आप बताते हो, वो ब्रैग्स कंडीशन पर से। तो कंडीशन मतलब आपके जो कुछ भी क्रिस्टल्स है उनमें क्या क्या उनके प्लेन्स होते हैं, कौन
कौन से प्लेन्स होते हैं, उनमें कितने कितने एंगल्स होंगे, ये हमने जैसे एक्सआरडी में पढ़ा था कि हमारे जो कुछ भी कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है और कोहेरेंट जो कुछ भी स्कैटरिंग होती है, तो वो कोहेरेंट स्कैटरिंग विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन योर एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ कौन, आपके इन क्रिस्टल्स में ये जो कुछ भी प्लेन्स होते हैं, जैसे हमने कभी देखा नहीं थे क्या, जो कुछ उसके प्लेन्स एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ कौन से कितने कितने डिस्टेंसेस पे, तो उसको कट डाउन करके उसके जो प्लेन्स होते हैं ना, तो वो प्लेन्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं वो हम बता सकते हैं। और ये जो कुछ भी प्लेन्स है तो वो हम इजीली बता सकते हैं ब्रैग्स इक्वेशन पर से। जो कौन सा इक्वेशन होता है ब्रैग्स का, व्हाट इज द वेरी फेमस वन इक्वेशन विच इज यूज विच यू हैव डिराइव्ड for as your Bragg's equation, that is nothing but n lambda is equals to 2d sin theta। और ये जो कुछ भी आपका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन आप लोग कैसे सेटिस्फाई करते हो, तो सिंपली ये जो कुछ भी स्कैटरिंग फेनोमेना आपको मिलता है, तो ये स्कैटरिंग फेनोमेना सिंपली आप लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वहां पर कुछ भी स्कैटरिंग आपकी एसोसिएट नहीं होती है ब्रैग्स रिफ्लेक्शन की वजह से, जो कुछ भी कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है वहां पर उस पर से। और यहाँ पर ये जो कुछ भी आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन न्यूट्रॉन्स का जो कुछ भी स्कैटरिंग होता है, तो वो स्कैटरिंग आप कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हो कोहेरेंट स्कैटरिंग के क्रॉस सेक्शन से। किससे? कोहेरेंट स्कैटरिंग के क्रॉस सेक्शन से, जो कि आप बताते हो। एक मिनट, कहाँ पर लिखूं, थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे। ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला पॉइंट थोड़ा सा रब करती हूँ। तो ये जो कुछ भी आपकी कोहेरेंट स्कैटरिंग है, तो ये कोहेरेंट स्कैटरिंग आपके ये बीम्स की आप बताते हो सिग्मा कोहेरेंट से। सिग्मा COH मतलब सिग्मा कोहेरेंट से। और ये जो कुछ भी आपके न्यूट्रॉन्स है, उनकी जो कुछ भी स्कैटरिंग फिनोमेना होता है और उसके बाद में आप लोगों को डायफ्रैक्शन मिलता है, तो ये आप ये जो बीम्स है आपके, तो आप कोहेरेंट स्कैटरिंग पर से डिटरमाइन करते हो। कोहेरेंट स्कैटरिंग मैंने आप लोगों को बोला था एक सरडी पढ़ाते वक्त कि आपके जो कुछ भी मतलब रेज होते हैं वो इन फेज होते हैं, और वो आप लोगों को कोहेरेंट फेनोमेना देते हैं। और वो जो कुछ भी कोहेरेंट फेनोमेना होता है या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग हम उसे बोलेंगे, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग जो कुछ भी होती है, तो वो कोहेरेंट स्कैटरिंग सिग्मा COH मतलब कि सिग्मा कोहेरेंट पर से आप लोग बताते हो आपके सिंपली ये न्यूट्रॉन के स्कैटरिंग फिनोमेना। एंड दिस इज all about the measurement technique which is determined for which is shown or denoted for neutron diffraction, and which method we are using here, Debye-Scherrer-Hull method. They can give you a full word like Debye-Scherrer method, sorry, Debye-Scherrer-Hull method or DSH method. DSH method, then you should not be confused between DSH, because what is the long form of DSH method? This is nothing but the Debye-Scherrer-Hull method. Which method this is? Debye-Scherrer-Hull method. And this is nothing but the last point from our syllabus, which is from our neutron diffraction. Now you guys can tell me, you clear with this point or not, and for the reply.